پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب دنیائے کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ٹیسٹ میچ، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹ کرکٹ کی مختصر ابتدائی تاریخ۔ دنیائے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے مابین 15 مارچ سے لے کر 19 مارچ سن 1877 کے درمیان مشہور آسٹریلوی ریاست وکٹوریہ کے مشہور شہر میلبورن کے MCG یعنی میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا۔ ٹیسٹ کرکٹ کے آغاز کا خیال سب سے پہلے سن 1861 سے لے کر سن 1862 کے درمیان میں میلبورن کی ایک کیٹرنگ کمپنی نے عوامی طور پر اس وقت پیش کیا تھا جب اس وقت برطانوی کرکٹرز کی ایک ٹیم نے، جس کی قیادت سرے کاؤنٹی کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیتھفیلڈ ہرمن اسٹیفنسن کر رہے تھے، انہوں نے آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا، جو کہ اس دور میں برطانوی کرکٹرز کی کسی بھی کرکٹ ٹیم کا پہلا دورہ آسٹریلیا تھا۔ اس کیٹرنگ کمپنی کا نام اسپائرز اینڈ پونٹ تھا، جو اس وقت میلبورن شہر میں کیفے ڈی پیرس کے نام سے ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ چلاتی تھی۔ اسپائرز اینڈ پونٹ کمپنی کے مالکان کے نام فیلکس اسپائرز اور کرسٹوفر پونٹ تھے۔ اسی دور میں آسٹریلیا اور برطانیہ نے اپنی اپنی کالونیوں میں کرکٹ کے کھیل کے فروغ کے لیے ابتدائی طور پر اپنی اپنی کوششوں کا آغاز کیا تھا۔ پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ سن 1877 میں برطانوی کرکٹ ٹیم نے اپنے کپتان جیمز للی وائٹ کی قیادت میں آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا، اور اس ٹیسٹ میچ میں ان کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا کی کمبائنڈ آسٹریلین 11 سے بحیثیت جیمز للی وائٹ 11 کے ہوا تھا۔ انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ طور پر اس ٹیسٹ میچ کو اس وقت ایک ٹیسٹ میچ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اور سن 1892 میں کہیں جا کر اس ٹیسٹ میچ کو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے سب سے پہلے منعقدہ کرکٹ ٹیسٹ میچ کا درجہ دیا گیا تھا۔ ایک جنوبی آسٹریلوی اسپورٹس صحافی جن کا نام کلیرنس پرسیویل موڈی تھا، انہوں نے اپنی ایک تحریر کردہ کتاب جس کا نام آسٹریلین کرکٹ اینڈ کرکٹرز 1856 سے لے کر 1894 تک تھا، جو کہ سن 1894 ہی میں شائع ہوئی تھی، اس کتاب میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے صحیح اصول وضع کیے تھے۔ دنیائے کرکٹ کے اس سب سے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کے نام درج ذیل ہیں، اور ایک ساتھ ان 22 کھلاڑیوں کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تھا، جو کہ ایک اور نیا عالمی ریکارڈ بنا تھا۔ آسٹریلیا کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے ارکان کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 چارلس بینرمین، دائیں ہاتھ کے بیٹسمین۔ نمبر 2 نیٹ تھامسن، دائیں ہاتھ کے بیٹسمین اور اضافی وکٹ کیپر۔ نمبر 3 ٹام ہوران، دائیں ہاتھ کے بیٹسمین اور آل راؤنڈر۔ نمبر 4 ڈیو گریگری، کپتان، دائیں ہاتھ کے بیٹسمین۔ نمبر 5 برانس بائی کوپر، دائیں ہاتھ کے بیٹسمین۔ نمبر 6 بلی مڈ ونٹر،
दाएं हाथ के बैट्समैन और राइट आर्म स्पिन बॉलर। नंबर 7 नेड ग्रेगरी, दाएं हाथ के बैट्समैन। नंबर 8 जैक ब्लैकहैम, विकेट कीपर। नंबर 9 टॉम गैरेट, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर। नंबर 10 बाएं हाथ के स्पिनर बॉलर। नंबर 11 जॉन होजेस, बाएं हाथ के फास्ट बॉलर। इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के अरकान। नंबर 1 हैरी जेप, दाएं हाथ के बैट्समैन। नंबर 2 जॉन सेल्बी, विकेट कीपर। नंबर 3 हैरी शॉलवुड, दाएं हाथ के बैट्समैन। नंबर 4 जॉर्ज एलियट, दाएं हाथ के बैट्समैन और ऑलराउंडर। नंबर 5 एंड्रयू ग्रीनवुड, दाएं हाथ के बैट्समैन। नंबर 6 टॉम आर्मिटेज, दाएं हाथ के बैट्समैन और ऑलराउंडर। नंबर 7 एल्फ्रेड शॉ, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर। नंबर 8 टॉम एमिट, बाएं हाथ के बैट्समैन और ऑलराउंडर। नंबर 9 एलन हिल, दाएं हाथ के बैट्समैन और फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर। नंबर 10 जेम्स लिली वाइट, कप्तान, बाएं हाथ के बैट्समैन और स्पिनर ऑलराउंडर। नंबर 11 जेम्स साउथर्टन, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। दुनियाई क्रिकेट के इस सबसे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की अंपायरिंग अदा करने के फ़राइज़ का एजाज़ रिचर्ड बेंजामिन टेरी और कर्टिस अलेक्जेंडर रीड को हासिल है। दुनियाई क्रिकेट के इस सबसे पहले टेस्ट मैच का टॉस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान डेव ग्रेगरी ने जीता था और उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपनिंग बैट्समैन चार्ल्स बैनरमैन और नेट थॉम्सन बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए, जबकि इंग्लैंड की जानिब से फास्ट बॉलर्स एल्फ्रेड शॉ और एलन हिल ने इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग का आगाज़ किया था। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एल्फ्रेड शॉ ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे पहली गेंद ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बैट्समैन चार्ल्स बैनरमैन को करवाई थी और चार्ल्स बैनरमैन ने एल्फ्रेड शॉ की इस गेंद पर टेस्ट क्रिकेट की तारीख का सबसे पहला रन स्कोर किया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट महज 2 रन्स के मजमूई स्कोर पर ही गिर गई थी जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एलन हिल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बैट्समैन नेट थॉम्सन को महज 1 रन के ज़ाती स्कोर पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया था। इस तरह से एलन हिल टेस्ट क्रिकेट में पहली विकेट हासिल करने वाले दुनिया के सबसे पहले बॉलर बन गए थे। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 40 रन के मजमूई स्कोर पर गिरी जब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन टॉम होरान भी एल्फ्रेड शॉ की एक गेंद पर एलन हिल के हाथों कैच आउट हो गए, जो कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख का सबसे पहला कैच था। टॉम होरान ने भी महज 12 रन ही स्कोर किए थे। इनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डेव ग्रेगरी खुद बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन वो भी महज 1 रन बनाकर ही चार्ल्स बैनरमैन के साथ एक तेज़ रन बनाने की कोशिश में रन आउट हो गए। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर महज 41 रन था और उन्होंने अपनी 3 कीमती विकेटें भी गंवा दी थीं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डेव ग्रेगरी के आउट होने के बाद ब्रांसबाई कूपर बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए और उन्होंने क्रीज पर मौजूद रहकर किसी हद तक ऑस्ट्रेलियन टीम के ओपनिंग बैट्समैन चार्ल्स बैनरमैन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के मजमूई स्कोर को कुछ सहारा दिया था और वो अपनी टीम के मजमूई स्कोर को 118 तक ले जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस स्कोर पर जेम्स साउथर्टन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रांसबाई कूपर ने 15 रन बनाए थे। ब्रांसबाई कूपर के आउट होने के बाद बिली मिडविंटर बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन वो भी महज 5 रन बनाकर जेम्स साउथर्टन और उनकी एक गेंद पर जॉर्ज एलियट के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 142 रन था। बिली मिडविंटर के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान डेव ग्रेगरी के जुड़वां भाई नेड ग्रेगरी बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए,
लेकिन वो अपना खाता खोले बगैर ही इंग्लैंड की टीम के कप्तान जेम्स लिली वाइट की एक गेंद पर फर्स्ट स्लिप में खड़े हुए एंड्रयू ग्रीनवुड को कैच दे बैठे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 143 रन था। नेट ग्रेगरी के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियावी विकेट कीपर बैट्समैन जैक ब्लैकहैम बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए और उन्होंने चार्ल्स बैनरमैन के साथ मिलकर 54 रन की एक अच्छी शराकतदारी कायम की। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियावी टीम का मजमूई स्कोर 197 रन पर पहुंचा तो जैक ब्लैकहैम भी जेम्स साउथर्टन की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 17 रन बनाए। जैक ब्लैकहैम के आउट होने के बाद टॉम गैरेट बैटिंग करने के लिए मैदान में आए और उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन चार्ल्स बैनरमैन के साथ मिलकर 43 रन की एक अच्छी और पायदार शराकतदारी कायम की। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियावी टीम का मजमूई स्कोर 240 रन पर पहुंचा तो चार्ल्स बैनरमैन, जो कि उस वक्त तक अपनी 285 मिनट की बैटिंग के दौरान 165 रन बना चुके हुए थे, फास्ट बॉलर जॉर्ज एलियट के 24वें ओवर की एक तेज़ गेंद अपने दाहिने हाथ की दूसरी उंगली पर लगने से अपनी उंगली फ्रैक्चर करवा बैठे और मज़ीद बैटिंग करने के काबिल ना रहे, जिसके बायस रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन वापस जाने पर मजबूर हो गए। चार्ल्स बैनरमैन ने अपनी इस इनिंग्स के दौरान 18 चौके भी लगाए थे। चार्ल्स बैनरमैन के रिटायर्ड हर्ट हो जाने के बाद टॉम कैंडल बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन वो भी महज 3 रन बनाकर एल्फ्रेड शॉ की एक गेंद पर जेम्स साउथर्टन के हाथों कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की ये 8वीं विकेट 243 रन के मजमूई स्कोर पर गिरी। टॉम कैंडल के आउट हो जाने के बाद जॉन हुजिस बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए, लेकिन वो बगैर कोई रन बनाए एल्फ्रेड शॉ की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह से ऑस्ट्रेलियावी टीम की पहली इनिंग्स 245 रन पर ही तमाम हो गई, जबकि टॉम गैरेट 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से एल्फ्रेड शॉ ने 51 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए, जबकि जेम्स साउथर्टन ने भी 61 रन देकर 3 ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी आउट किए थे। जबकि कप्तान जेम्स लिली वाइट ने 19 रन देकर 1 खिलाड़ी और फास्ट बॉलर एलन हिल ने भी 42 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया था। ऑस्ट्रेलियावी इनिंग्स की सबसे अहम खुसूसियत चार्ल्स बैनरमैन का अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करना था, जो कि दुनियाई क्रिकेट की तारीख का भी अव्वलीन टेस्ट मैच था। इसलिए चार्ल्स बैनरमैन टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहले सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बन गए थे। इसके अलावा चार्ल्स बैनरमैन ने ऑस्ट्रेलियावी इनिंग्स में अपनी बैटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के मजमूई स्कोर 245 रन में से 165 रन खुद बनाए थे, जो कि ऑस्ट्रेलियावी इनिंग्स के कुल मजमूए का 69.60% बनता है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। और ये आलमी रिकॉर्ड तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक बरकरार है, जबकि इस इनिंग्स में बैटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियावी टीम के किसी भी दूसरे बैट्समैन ने 20 रन बनाने का हिस्सा भी अबूर नहीं किया था। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया के 245 रन का जवाब देने के लिए इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए अपने ओपनिंग बैट्समैनों की जोड़ी हैरी जिप और विकेटकीपर बैट्समैन जॉन सेल्बी को मैदान में उतारा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्ट बॉलर जॉन हुजिस और टॉम गैरेट ने बॉलिंग का आगाज़ किया। हैरी जिप और जॉन सेल्बी इंग्लैंड के स्कोर को 23 रन तक ले गए। इस स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब इंग्लैंड के विकेटकीपर बैट्समैन जॉन सेल्बी ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉन हुजिस की एक तेज़ रफ्तार गेंद पर पहली स्लिप में मौजूद बांसबारी कूपर को कैच दे बैठे। जॉन सेल्बी ने 7 रन बनाए। जॉन सेल्बी के आउट होने के बाद हैरी शॉलवुड बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए। उन्होंने हैरी जिप के हमरा दूसरी विकेट की शराकत के लिए 56 रन की एक अहम शराकत कायम की, लेकिन
وہ بھی 36 رنز بنانے کے بعد 79 کے مجموعی سکور پر بلی مڈ ونٹر کی گیند پر وکٹ کیپر جیک بلیک ہیم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ جاری ہے